Today I want to talk to you something that's very powerful. I'll make it short, but I'll make it quick because we need to pray. और देखिए आज ऐसी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही सामर्थ्यशाली, छोटे में रखेंगे लेकिन पूरा करेंगे ताकि हम प्रार्थना भी कर सकें। You see, in life, देखते हैं जिंदगी में we often make a lot of choices. अक्सर हम बहुत सारे चुनाव करते हैं And those choices, they determine our future. और वे चुनाव जो है हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। But many times, लेकिन कई बार we find ourselves chasing those things which are not so important and they lead us nowhere. हम जिंदगी में हम खुद को उन चीजों के पीछे भागते हुए पाते हैं जो महत्वपूर्ण तो लगती है लेकिन आखिर में कहीं पहुंचाती नहीं है। You chase after things. अब चीजों के पीछे भागते हैं, You spend day and night after those things. दिनों रात उन चीजों के पीछे आप निकाल देते हैं And they don't lead you anywhere. और वे कहीं आपको पहुंचाती नहीं And then you're depressed. और फिर आप निराश हो जाते हैं। You want to go to Bandra ceiling. आप बांद्रा के सीलिंग पे जाना चाहेंगे। फिर Matthew chapter 2 and verse 2. मत्ती का दूसरा अध्याय उसका दूसरा वचन, Look what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है। And when they arrived in Jerusalem, और जब वे यरूशलेम में पहुंचे they inquired, where is he who has been born the king of the Jews? और वे यरूशलेम में पहुंचकर ये पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वे कहाँ है। Matthew chapter 2 tells us of a certain group of people. मत्ती का दूसरा अध्याय जो है वो लोगों के एक समूह के बारे में बताता है। Some people call them 3 wise men. और कुछ लोग उन्हें कहते हैं 3 बुद्धिमान लोग। Nowhere in the Bible it says 3 wise men. बाइबल में कहीं पर भी 3 बुद्धिमान लोग ऐसा नहीं लिखा है। How many understanding right? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Now they make that inference, they make that conclusion because there were 3 gifts. और देखिए क्योंकि 3 तरह के तोहफे उपहार उन्होंने लाए थे, इस पर आधारित मुताबिक ही देखिए वे अंदाजा लगा लेते हैं। How many listening right now? ये तो समझ रहे हैं, But that's not true. लेकिन सच नहीं है। How many understanding right now? कितना समझ रहे हैं इस वक्त। History tells us इतिहास बताता है that these 3 gifts were brought because of a prophetic thing. Incense, myrrh, and gold. और देखिए देखिए इतिहास बताता है कि ये 3 चीजें जो लाई गई थी भविष्यवक्ताई तौर पे एक चित्र को दर्शा रही थी वहां पर। Incense speaks about his priesthood. और लोबान या सुगंध धूप जो है उसकी याजक पद को दिखाता है। Jesus was a priest, और यीशु एक याजक थे, high priest. महायाजक। The Bible calls him in Hebrews. और बाइबल उसे पुकारती है इब्रानी की पत्री में। Myrrh was used to embalm dead bodies. और गंधरस का इस्तेमाल किया जाता है मृत शरीर पर मलम लग के जैसे लगाने के लिए। Myrrh speaks prophetically that he was going to die. और गंधरस जो है भविष्यवक्ताई तौर पे ये कह रहा है कि वो मरने वाला है। Gold Sona. speaks about his divinity. सोना जो है उसकी दैवीयता के बारे में बताता है। The holies of holies, the temple was covered with gold. परम पवित्र स्थान जो है देखिए वो ढका हुआ था सोने से। It speaks about divinity. ये दैवीयता के बारे में So बताता these है। 3 gifts were not bought by 3 people, but there was a large group of people, because you see in those days 3 people used to not travel. They had a whole caravan. और देखिए यहाँ पर हम देख How many सकते हैं understanding कि what I'm 3 saying? लोग ये 3 तोहफे Look ले at आए history, थे। don't एक look at बहुत me. बड़े Look लोगों का at समूह। all the documents. और देखिए बहुत बड़े लोगों की भीड़, जैसे कि इतिहास बताता है कारवां के रूप में उनके साथ जाया करता था। Pastor, how do you know all this? पासवान जी आपको ये कैसे पता? You see, I've been nearly 14 times to Israel, and I don't think, yes, the first time I went for sightseeing, but the rest of the time I didn't go to Israel to just see things. I would go there and study, meet people, research things, and that's how I learned many things. Hello, are you with me 14 बार right now? इस्राएल जाके आए देखे। Yes. पहली बार गए तो वहां नजारा देखे, लेकिन उसके बाद जब भी I'm waiting for you तो to वहां take पर you to Israel again. लोगों से मिले, वहां पर चर्चा किए, वहां पर Yes. अध्ययन करके आए और To बताते हैं। study, not just to sightsee. और सिर्फ नजारा देखने के लिए It's नहीं, amazing. बहुत जबरदस्त है। God bless Israel. परमेश्वर इस्राएल को आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया। So here they're called wise men. तो देखिए वे कहलाते थे बुद्धिमान लोग। Why are they called wise men? क्यों उन्हें बुद्धिमान कहा गया? You see, church, अब देखते कलीसिया, a baby was born, एक बच्चे का जन्म हुआ था and they are calling him king. और वे उसे पुकार रहे थे राजा नाम से। Come on now. A baby was born, एक बच्चे का जन्म हुआ and they are calling him king. King. Wisdom not only sees the present, it looks to the future. और देखिए बुद्धि जो होता है वो सिर्फ वर्तमान में ही नहीं देखता लेकिन भविष्य में भी देखता है। Wisdom has the ability to discern not only the usefulness of a thing in the present, but how it can be useful in the future. और देखिए बुद्धि में देखिए परखने की ऐसी शक्ति होती है कि किसी चीज को जो है कैसे वर्तमान में इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे उसी चीज को भविष्य में भी लगाया जा सकता है। Such people are in high demand in the world. और इस तरह के लोग जो है दुनिया में ज्यादा उनकी मांग होती है। They call them business analysts. और उन्हें जो बिजनेस एनालिसिस नाम दे दिया जाता They है। look at a project and they say, look, this project will give you 25% return, 30% return. Come on, help me now. और देखिए प्रोजेक्ट को देखते हैं और कहते हैं Yes. ये प्रोजेक्ट जो है आपको
25 यानी 25% रिटर्न देगा, 30% रिटर्न देगा। And you ask them how? और आप पूछते हो उसे कैसे? Say बेटा तू कल आया है, ये मैंने स्टडी किया है और मेरी बुद्धि लगाई है, and I can understand that in the next 6 years it will give you an average of at least 27-30% returns. And you say, boss, I want to appoint you. How many of you are understanding right now? और कितने समझ रहे हैं इस वक्त? You see, wisdom is the ability देखते हैं, बुद्धि एक क्षमता भरा है to see beyond your present. आपके वर्तमान के परे देखने के लिए। That's why Daniel, इसलिए दानियल such people usually are found with kings. और ऐसे लोग जो हैं अक्सर जो राजाओं के साथ मिलते हैं। You see in Dubai, the sheikh has such people. आप देखते हैं दुबई में शेख के पास ऐसे लोग होते हैं। Come on, come on, come on. चलिए, The Pharaoh wanted to have people like him. और फिरौन भी अपने पास ऐसे लोगों को रखना चाहता He था। said, Joseph, इसलिए उसने कहा यूसुफ, where can I find a man in whom is such wisdom as the gods? और उसने कहा कि कहां हमें ऐसा मनुष्य मिल सकता है जिसमें ईश्वर की आत्मा यानी परमेश्वर की बुद्धि रहती May the है। Lord bless us with wisdom, such wisdom this परमेश्वर morning. ऐसी बुद्धि से आप लोगों को आशीष करे। You need to get this wisdom. आपको ये बुद्धि पाने की जरूरत है। The Bible calls them wise. बाइबल उन्हें बुद्धिमान In कहता the है। share market, शेयर मार्केट में I'm not talking about the people 10 डाल 100 निकाल, no, और बाद में 1000 गया. Hello, are you with me right now? क्या साथ में आप इस वक्त? You see, there are people who will understand a long-term game. और देखिए ऐसे लोग मिलेंगे जो लंबे समय का जो चीजों को समझ जाएंगे, And such people are called wise. और ऐसे लोगों को कहा जाता है बुद्धिमान। I'm not saying anything about shares, okay? नहीं, pastor ने भी बोला था ऐसे. I'm just giving an example. बस एक उदाहरण दे रहे हैं। Hello. The first point. पहला मुद्दा, Wisdom is the ability to see in the future. और बुद्धि में क्षमता होती है भविष्य देखने की, To pursue something that you don't see now. और ऐसी कुछ चीज का पीछा करने का जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। You brought a piece of land. आप जमीन का कोई हिस्सा लाते हैं And people say, बेच. और लोग कहते हैं बेचो बेचो बेचो। बोले ले, बेच दिया. अभी आ गया रास्ते पे तू, खा पी के. खाया, सब लोग ने खाया, मुंह पोछा, सब बोले प्रभु. But wisdom has the ability लेकिन बुद्धि में क्षमता है to pursue things. चीजों का पीछा करने की। बोले प्रार्थना में क्यों चाहता है तू? सोना. अरे मजा मार, संडे है. इतने दूर जाता है तू. अरे इधर से देखना, लाइव है भाई. But you are a wise man. लेकिन आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। You say, I don't want a photograph of heaven. I want to be there. मुझे स्वर्ग की बस तस्वीर नहीं चाहिए, मैं वहां जाना चाहता हूं। I don't want a video of the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति की वीडियो मुझे नहीं चाहिए, I want to be there. मैं वहां होना चाहता हूं। Wisdom. बुद्धि, You're wise. आप बुद्धिमान हैं। Why do you think आप क्यों सोचते the wise men traveled so many miles? कि बुद्धिमान इतने लंबे मील दूरी तय They करके आए? wanted to encounter the face of the Creator. सृष्टिकर्ता के चेहरे से मुठभेड़ करने के लिए। क्या बात है? You can't see it now. आप देख नहीं सकते अभी। Please listen to this सुनिए carefully. ध्यान से, You don't understand it now. आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, But by faith you pursue it. लेकिन विश्वास से देखिए आप उसका पीछा करते हैं, You understand it. आप समझ लेते हैं। That is wisdom. यही तो है बुद्धि। Look at somebody and say, अभी तुझे नहीं समझ रहा. Now listen carefully. अब सुनिए ध्यान से, The second point, write it down. दूसरा मुद्दा They reached Herod. देखिए, वो हेरोदेस तक पहुंचे। Now they went to Herod वे हेरोदेस के पास गए because Herod was the boss of that place. क्योंकि हेरोदेस उस जगह का स्वामी था। And they went and asked him, और जाके उससे पूछे, where is he born, the king of the Jews? और यहूदियों का राजा, उसका जन्म कहाँ हुआ? Now we know the story. हमें कहानी पता है। Instead of Herod being happy, और देखिए हेरोदेस को खुश होना चाहिए था, इसके बजाय he was insecure. वो असुरक्षित महसूस करने लगा। You know, I did a little study. At that time, Herod was around about 70 to 80 years old. उस समय हेरोदेस की उम्र कुछ 70-80 के आसपास थी। Where is he be born? The king of the Jews. So by the time this baby would become a king, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? तो देखिए जब हेरोदेस की उम्र से जब वो बड़ा होता तब तक Herod would have died. हेरोदेस तो मर गया होता ना, But still he was insecure of a baby. लेकिन फिर भी देखिए उस बच्चे के बारे में वो असुरक्षित महसूस करने लगा। Look at somebody and say, insecurity किसी को देखकर कहे, will make you to act weird. असुरक्षित होना आपको मजबूर करेगा अजीब बर्ताव करने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई लोग तुम्हारा कुछ भी बाका नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप इनसिक्योर हो। कितने लोग सुन रहे हैं? नहीं देखना मुझे कैसे देख रहा है, देखना। अरे उसको देखने देना जो देखने का है, कुछ नहीं कर सकता तेरा वो।
नहीं, जब भी मैं गाड़ी चलाती हूँ ना, वो ऊपर से ऐसा कुछ पानी मारता है. मारने देना पानी. तू भी वाइपर का पानी मार. पानी मार. नो नो नो, हेलो 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 हेलो. पब्लिक ऐसा लिखती है. नहीं पास्टर, वो पानी मारता है. मैं बोला तू भी मार पानी. अगर तो एक लोटा डालता, तू डाल एक बाल्टी. पानी मारता है. Insecure. असुरक्षित. Hello. Now I'm not denying there is this thing, but listen. सुनिए. Don't lose your sleep after some simple things. इन छोटी मोटी चीजों में अपनी नींद मत गवाओ. How many of you are listening right ये now? तो सुन रहे हैं इस वक्त? Your security is in Christ. आपकी सुरक्षा मसीह में है. Say it loudly. My security is in Christ. जोर से बोलिए, मेरी सुरक्षा मसीह में है. नहीं, मेरे सामने और एक दुकान खोले. अरे 10 खुलने ना, जो तेरा है वो तेरे पास ही आएगा. खुदा ने जो लिखा है ना, वो तेरे पास आएगा. और प्रभु ने चाहा तो 50% और आएगा. नहीं, मेरे एसिडिटी हो गया. क्यों एसिडिटी हो गया? नहीं, वो सामने दुकान खुलने के बाद कुछ पचन ही नहीं होता है. और बाद में हम लोग उसको बोलते हैं वो विचक्राफ्ट कर रहा है. अरे विचक्राफ्ट कर रहा है, तू भी तेरा क्राफ्ट करना, प्रार्थना करना. तू कुछ करता ही नहीं है, खाली ज्यादा देखते रहता है. करमचंद जासूस. हमारे क्रिश्चियन लोग खाली देखते रहते, कुछ करते नहीं. Church, Herod was so secure, insecure. और हेरोदेस इतना असुरक्षित हो गया. Like some people today. जैसे आज के जमाने कुछ लोग He was insecure about a baby. और एक बच्चे के बारे में असुरक्षित महसूस And the कर. wise men could have discerned it. और बुद्धिमान लोग इस बात को परख सके. You know what Herod said? अब जानते हैं हेरोदेस ने क्या कहा? Please listen. सुनिए. He said, you go, हेरोदेस ने कहा तुम लोग जाओ, search, ढूंढो and come and tell me. और आकर मुझे बताना. Hello. सुनिए. Herod, you should have gone along with them. और हेरोदेस तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था. Do you know, when I आपको was पता? in Israel, listen to me. सुनिए. The guide, he was a certified guide from the Israeli university. और जो गाइड जो था इजराइल की यूनिवर्सिटी का एकदम प्रमाणित गाइड था. He said, Pastor Michael, उन्होंने कहा कि पास्टर माइकल जी, Herod was there हेरोदेस वहां था and Jesus was born there. और यीशु का जन्म वहां You हुआ. know how far it was? आप जानते हैं कितना दूरी था? Not even 1.5 miles. 1.5 मील भी नहीं. And still, फिर भी he did not go. वो गया नहीं. 1.5 to 2 miles. Hello? Still he did not go. फिर भी नहीं गया वो. How insecure was Herod? कितना असुरक्षित महसूस कर रहा था You हेरोदेस. think, आप सोचते the wise men did not understand this? कि बुद्धिमान लोग इस बात को नहीं समझे थे? So they go over there. तो वे जाते हैं वहां, They give the gifts. जाकर तोहफा देते हैं And they're about to come back. और वापस लौटने वाले होते हैं. At that night, उस रात come on. There is an angel that comes to them. स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट होता है. The angel tells them, स्वर्गदूत उनसे कहता है, don't go to Herod. हेरोदेस के पास मत जाना, He's going to kill the baby. वो बच्चे को मारने वाला है. At that moment, उस पल में the tetrarch of Galilee, और गलील के पूरे इलाके में the Romans had appointed him और रोमियो ने उसे वहां पर नियुक्त किया था. like an MP. Hello. He's the main guy. वो मुख्य व्यक्ति था Without वहां. him, nothing happens. उसके बिना कुछ नहीं. They were over there. और वे वहां थे. Now they have to make a choice between Herod or the baby Jesus. अब देखिए उनके पास चुनाव करने का मौका आ गया था कि हेरोदेस और यीशु के बीच में चुनाव करें. Please, I want you to see this. और सुनिए ध्यान से, Between सर्वोच्च व्यक्ति Herod and baby Jesus. So think about it. सोचिए इस बारे में. And baby Jesus is not in a palace. और बालक यीशु तो महल में भी नहीं था. Baby Jesus with some cows and donkeys and all. Please listen. Please listen. जरा सोचिए मैं क्या बोल रहा हूं. In the field somewhere. और खेत में कहीं And पर. they have to make a choice. और देखिए उनको वहां पर चुनाव करना पड़ा. Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं The first point I told you, पहला मुद्दा. wisdom is the ability to see not just the present, but to see the usefulness of a thing in the future. और देखिए बुद्धि में देखिए क्षमता होती है चीज को सिर्फ वर्तमान में ही देखने की नहीं, लेकिन उस चीज को जो है भविष्य में भी लागू किया जा सकता है देखने की. Write it down. लिख लीजिए. The second thing. दूसरा चीज, Wisdom बुद्धि. is also the ability इसमें क्षमता ये भी है to know कि जाने what has no future. कि किस चीज में भविष्य नहीं है. नहीं समझा सर आप. The wise men saw बुद्धिमान लोगों ने देखा that Herod has no future. कि हेरोदेस के पास कोई भविष्य नहीं है. Those say Herod, उन्होंने कहा हेरोदेस bye bye.
अलविदा। Jesus, यीशु welcome. Hallelujah. स्वागत है। Hello, are you understanding क्या आपको this? समझ आ रही है? Wisdom, the second point, दूसरा मुद्दा, is the ability बुद्धि में क्षमता to है understand. समझने की कि अरे भाई, what I'm doing right now कि जो मैं भी कर रहा हूं इस वक्त, has no future. इसमें कोई भविष्य नहीं। दुकान बंद। दुकान बंद। बुरा लगा, कोई कोई लोगों को धक्का लगा। Oh my Jesus. Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं इस वक्त, You know, in the olden days, the city was circled. देखिए पुराने जमाने में ऐसा होता था कि शहर नगर को घेरा हुआ होता था। In the book of Joshua, यहोशू की पुस्तक में Jericho was a city with walls. आप देखते हैं कि यरीहो एक नगर था जिसके चारों ओर There शहर was पर only दीवारें one थी, entrance. एक ही प्रवेश द्वार होता था। And the scripture says in the book of Matthew, और बाइबल ऐसा कहती है, देखिए मत्ती की पुस्तक में, the wise men went with another way. कि बुद्धिमान लोग दूसरा रास्ता पकड़ के निकल गए। Today I prophesied to somebody. आज भविष्यवाणी करते किसी के लिए, Doors have been closed for you, दरवाजे आपके लिए बंद रहे, but God is going to make another way for you. लेकिन परमेश्वर आपके लिए दूसरा रास्ता बनाने जा रहा है। God is going to make another way for you. परमेश्वर आपके दूसरा रास्ता I बनाने जा came रहा here है। to tell somebody morning, as a man of God, God is about to open a way for you in the name of Jesus. किसी को सुबह कहने के लिए परमेश्वर, Receive. परमेश्वर आपके दूसरा दरवाजा बनाने पर यीशु के नाम में। सब लोग बोले तेरा खेल खत्म नहीं सर, तेरा खेल अभी चालू होता है तेरा। Receive. ले लीजिए, Receive. ले लीजिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Another way. और एक दूसरा रास्ता। Don't just think कि God can work just like this. ऐसा मत सोचिए परमेश्वर सिर्फ ऐसे ही काम कर सकता है। God can work in another way. परमेश्वर दूसरे तरीके से भी काम कर सकता है। See the wise men. देखिए बुद्धिमान लोगों को, They maybe had to live through immigration, through this, but God made another way. और देखिए उन्हें इमिग्रेशन या दूसरी सारी चीजों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। They knew. उन्हें पता था। Wisdom is also the ability to understand which thing has no future. बुद्धि में यह भी क्षमता है समझने के लिए कि किस चीज में कोई भविष्य नहीं है। May God open your eyes परमेश्वर आपकी आंखें खोले, to show you आपको दिखाने के लिए what things in your life have no future. कि आपकी जिंदगी में कि किन चीजों में कोई भविष्य नहीं You're है। wasting your time. आप अपना समय बर्बाद कर You're रहे हैं, wasting your energy. आप अपनी ऊर्जा गवा रहे You're हैं, wasting your money आप अपना पैसा गवा रहे हैं on those things, उन चीजों में, on those people. उन लोगों पर। करोड़ों की बात करते हैं, उनके जेब में चाय के लिए पैसा नहीं है। अरे चाय का पैसा देना, तू देना करोड़ वाला। हम लोग क्या करेंगे, वो 5 करोड़ आने वाला अभी कहां से आने वाला है मेरे को भी नहीं मालूम। प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस नॉनसेंस। मेहरबानी करके बेवकूफी में फंसो मत। मैं बोलता हूं लेकिन पब्लिक सुनती नहीं है। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही चू चू कर रहा हूं? नहीं सर। You'll waste your money. आप अपना समय पैसा गवाएंगे, You're wasting your time. अपना समय जो है आप गवा रहे हैं। There are liars out there. और बाहर ऐसे बहुत झूठे लोग मिलेंगे। How many understanding right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Wisdom is the ability to not go after things that have no future. बुद्धि में ऐसी क्षमता होती है कि हमें उन चीजों के पीछे जाने से रोक सकती है जिसका कोई भविष्य नहीं। So they knew that Jesus has a future. तो उन्हें पता था कि यीशु में भविष्य है, They went after him. तो वे उसके पीछे गए। पब्लिक बोले लेगा अरे ये तो बच्चा है, ये बोला बच्चा नहीं है राजा है। Can you ask God for that wisdom? बोले प्रभु मुझे ऐसी चीजें बता, ऐसे स्टार्टअप्स बता, ऐसी बिजनेस आइडियाज बता जो दिखने में तो छोटे दिखते हैं लेकिन आगे जाके राजा जैसा काम करेंगे। Please listen very carefully. मेहरबानी करके ध्यान से सुनिएगा। Don't fall for everything that you see on YouTube, okay? यूट्यूब पे जो भी दिखता है हर एक चीज में फंसो मत। रोज $500 कमाओ। $500 कमा तो तू YouTube ऐसे क्यों बेच रहा है सब? एक महीने में 1 करोड़ कमाओ। और बेचारे हमारे यूथ लोग बैठे हैं उधर पूरा दिन YouTube सारा। It should be a hobby, not to make money. ये एक शौक तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन पैसा बनाने के लिए से नहीं। Wow. Let's go to the book of Genesis. चलिए जाते उत्पत्ति की पुस्तक में। Genesis 39. Go to 7. And it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph. And she said, sleep with me, lie with me. इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा,
मेरे साथ सो. Now the Bible says Joseph was a man who belonged to, his father was Jacob. हम देखते हैं बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ का पिता याकूब था. Come on now. सुनिए, Jacob. याकूब. In other words, he was also called Israel by God. दूसरे शब्दों में देखिए, परमेश्वर के द्वारा उसे इज़राइल नाम भी दिया गया है. Israel is a land and Israel is a person. और इज़राइल एक देश है और इज़राइल एक व्यक्ति भी है. Now this lady, देखिए ये महिला, she wants to have a relationship with Joseph. और ये महिला, ये स्त्री जो थी, यूसुफ के साथ संबंध बनाना चाहती थी. Go to verse 12. 12 वचन में देखें. And she caught his by his hand, a garment, and saying, lie with me. But he left his garment in her hand and ran outside. तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो. पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया. Give me verse 9. You know what was Joseph's response? आप जानते हैं यूसुफ का वहां पे क्या प्रत्युत्तर था? Joseph looked at that lady यूसुफ ने उस औरत को देखा and perhaps remembered the prophecy और हो सकता है कि उसे अपने भविष्यवाणी याद आई होगी, where he saw the sun and the moon and the stars bowing to him. जहां पर उसे देखा था कि Oh, come सूर्य, on. And he said, this thing has no future. और उसने कहा इस चीज में कोई भविष्य नहीं है. She looks good. अच्छी दिखती तो है ये. I'm feeling lonely, मुझे तन्हाई महसूस होता है, but that's not my future. लेकिन ये मेरा भविष्य नहीं. He didn't call his mother and say, Mama, I love him. Mama, Papa, teri to Papa. He knew उसे पता था that this woman with whom I can have a relationship ये स्त्री जिसके साथ अगर मैं संबंध बनाऊं and I will not get caught. और मैं पकड़ूं, कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा. In fact, I will have a good time. और दरअसल मेरा अच्छा समय रहेगा यहाँ. But this relationship लेकिन ये संबंध has no future. में कोई भविष्य नहीं है. He ran away from it. वो वहां से भाग गया. I pray that God give you strength to run away from things which have no future. कि परमेश्वर आपको इतनी ताकत दे कि वे चीजें जिसका कोई भविष्य नहीं, उनसे आप दूर भाग सकें. But मेरा क्या? Sir, don't be like Esau, एसाव के जैसा मत who बनिए, for a bowl of immediate soup sold his future. और जिसने तुरंत मिलने वाले एक कटोरा सूप के लिए अपना भविष्य बेच दिया. How many understanding this truth? I want you to understand this truth, sir. और चाहते हैं सच्चाई को आप समझें, Because if you don't understand this truth, क्योंकि अगर आप इस सच्चाई को नहीं समझेंगे, you will lose what God has planned for you. जो परमेश्वर अपनी योजना बना रखी है उससे आप चूक जाएंगे. It could be a relationship. ये कोई संबंध हो सकता है, It could be a career choice. ये करियर का कोई चुनाव हो सकता है, It could be an investment. ये कोई निवेश हो सकता है, It could be a business plan. कोई व्यवसाय की योजना हो सकती है. Ask God and say, God, is there future in this? परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर क्या इसमें कोई भविष्य है. It could be a piece of land. It could be stock. It could be anything. It could be Tina. It could be... Yes. Could be anybody. कोई भी हो सकता है. Does this thing have future? क्या इस चीज में कोई भविष्य है? I want to tell you, sir. आपसे कहना चाहते हैं इस वक्त, You can have a good time, आप अच्छा समय बिता सकते हैं, but you lose your future. लेकिन आप अपना भविष्य गंवा बैठेंगे, Because that will take you in a way क्योंकि आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएगा far away from where God intended you to be. जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया उससे कहीं दूर. Two things I spoke. दो चीजों पर चर्चा हुई. Wisdom is the ability to see not only the present, but to see what this thing, person, investment can do in the future. Somebody say, I receive. और कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूं इस समय. When you employ somebody, जब आप किसी को काम पर रखने वाले होते हैं, you just don't see कितना अच्छा बात करता है. Hello sir. बेच देगा तेरे को. See in the future. भविष्य में देखें. Wisdom is also, second point, is also the ability to understand what things, the people, the investments which have no future, dump it, throw it, sell it. बुद्धि में यह भी क्षमता है आपको दिखाने की क्या चीज है, क्या इंसान या कोई भी ऐसा निवेश या कुछ भी जिसमें कोई भविष्य नहीं है, तो उसे बंद करें. कभी कभी हम लोग उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जिनमें भविष्य नहीं होता है, और उन चीजों को बेचते हैं जो भविष्य होता है. जरा सोचा आपने? How many understand right now? ये तो समझ है इस वक्त. We sell, you see Judas. आप देखते यहूदा को, He sold the very thing that would give him a future. वही चीज जो उसको भविष्य दे सकता उसे बेच दिया उसने. बोले 30 सिक्के मिले बस
Saturday night, have fun. But you see, the name of Judas could have been written on the foundation in heaven. लेकिन यहूदा का नाम जो है स्वर्ग में वहां पे बुनियाद के तौर पे लिखा जा सकता था. On the walls, oh Jesus. His name is missing. लेकिन उसका नाम वहां नहीं मिला. There are some places your name would have been written hadn't you, if you would have understood this word of mine today. कुछ ऐसे जगह जहां पर आपके नाम लिखे जा सकते हैं अगर आप ये वचन ये संदेश समझ जाए आज. ऐसे ऐसे जगहों पर तुम्हारे नाम शायद लिखे होते. अगर ये मैसेज को तुम ग्रहण करो, रिसीव कीजिए आज. अगर इसको रिसीव नहीं करोगे तो वो चीज दूसरे का नाम लिखा जाएगा. सर, द बाइबल सेज दीस थिंग्स हैपन टू देम, हैपन टू, ये चीजें उनके साथ हुई एज एग्जांपल्स, एक उदाहरण के रूप में. Hebrews, they were written for our learning. और हमारे लिए सीखने के लिए लिखी गई हैं. How many of you are understanding this truth? What things have no future in your life? क्या चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में जिसका कोई भविष्य नहीं है? That gossip auntie वो कानाफूसी करने वाली आंटी has to go. उसे जाना चाहिए. बहन चलो बैठते हैं, इसकी उसकी बात करते हैं और बाद में प्रार्थना करते हैं. Stop that nonsense. ये सब बेवकूफी बंद करें. You pray, you gossip for 50 minutes and pray for 10 minutes. 50 And you मिनट called 1 hour of prayer we had. और बोलते हैं कि 1 घंटा प्रार्थना हो गया हमारा. 1 घंटा प्रार्थना नहीं हुआ. तुम 1 घंटा पहले अंदर आए थे. पिता हम लोग जस्ट टाइम हो गया ना, हालेलुया सब कुछ समर्पित करते हैं, जाते हैं इन जीसस नेम. चाइला. Go with me to Hebrews, please. चलिए निकाल इब्रानी की Some of you don't like this message, it's okay. I am not preaching for you, I'm preaching for those who are receiving it. Today, this is a word, prophetic. There are many messages that are teachings. There are some messages that are prophecy. देखिए बहुत सारे ऐसे शिक्षण संदेश होते हैं जो सिखाया जाता है, कुछ उसमें से भविष्यवाणियां होती हैं. Sometimes we hold on to relationship. No. I love. कभी-कभी Not your संबंध को presence. पकड़े रखते हैं. छोड़ेगा नहीं, बोले बहुत अच्छा है. No future. कोई भविष्य नहीं. Some business has no future. कुछ व्यवसाय में कोई भविष्य You're नहीं. just putting the money. पैसे डालते रहते. Some investment. कुछ निवेश. Some things you have to hold, some things you have to let go. कुछ चीजों को आपको पकड़े रहना है, कुछ चीजों को जाने देना है. Hebrews, hurry up. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया. What? I don't want to take anybody's names in our country. हमारे देश में. But what if you would be called Trump's cousin? And you come into Karuna Sadan. ये जो है ना, ये भाई साहब ट्रम्प के फर्स्ट कजिन है. फर्स्ट कजिन डोनाल्ड ट्रम्प. Everybody after the meeting. सब लोग सभा के बाद में. Come on, yes or no? Yes. You would have photographed him. Pacha. You have to. इतना फोटो जीसस का नहीं लेगा तुम. I'm telling you, everybody would have taken. और सब लोग बताता. Do you know in our church who came? Donald Trump's first cousin. और आप जाके सभी को बताते, आपको पता हमारी कलीसिया में कौन आए? डोनाल्ड ट्रम्प के जो सबसे पहले रिश्तेदार वो आज आए. And here is Moses और यहाँ पर देखते हैं मूसा को. saying, वो कह रहा है, yes, हाँ, this Pharaoh's daughter picked me up, raised me up, but I refuse to call myself the Pharaoh's daughter, Pharaoh's son, Pharaoh's daughter's son. इस फिरौन की बेटी ने मुझे लिया, मेरा पालन पोषण किया, लेकिन मैं इसका बेटा कहलाने से ठुकरा देता हूँ. Imagine he would go anywhere. जरा कल्पना करें कहीं भी हो जाए. Who are you? तुम कौन हो? I'm the Pharaoh's daughter's son. मैं फिरौन की बेटी का बेटा हूँ. सलाम. But he said, no, लेकिन उसने कहा नहीं. नहीं. Write it down. लिख लीजिए. He saw no future. उसे देखा कोई भविष्य नहीं है. Look at somebody and say, he saw no future. किसी को देखकर कहे उसने देखा कोई भविष्य नहीं. The third point, the extent of your sacrifice will determine the extent of your harvest. और जितने मात्रा में देखिए आप बलिदान करते, यही दिखाता है कितनी मात्रा में आपकी फसल होगी. What you are ready to eliminate from your life, जो चीज को आप अपनी जिंदगी से अलग करेंगे तैयार है, that much will bring an inflow in your life. उतना ही ज्यादा बहाव देके वो लाएगा आपकी जिंदगी में. You know, एक व्यक्ति आया मेरे पास many years back, of course. I remembered him today. I met him on the train. बाद में ट्रेन में मिला उनसे. And I was talking to him. उससे बात कर रहे थे. And he came to know I was a pastor. और उन्हें पता चला कि पासबान है. And he said, और फिर उन्होंने कहा, आप पता है,
मैंने यीशु के लिए सब कुछ त्याग दिया। I said, वाह। मैं बोला, आप क्या त्याग दिया यीशु के लिए? बोले, ज्यादा कुछ नहीं, मैं दूसरी पढ़ा हूं, मेरे पास नौकरी नहीं थी, हम लोग छोटे से घर में, सब कुछ त्याग दिया। मैंने बोला, तेरा त्याग है, लेकिन वो छोटा त्याग है। कोई लोगों ने महल छोड़ दिए यीशु के लिए, कोई अपनी जिंदगी त्याग दी यीशु के लिए। How many understand right now? कि तो समझ रहे हैं। What are you ready to say no to? That much will be your blessing. जिस चीज के लिए आप ना कहने के लिए तैयार देखो, उतना ज्यादा आपकी आशीष होगी। I'm telling you, church. कह रहे हैं आपसे कलीसिया। I'm telling you, please listen. Some of us have not given up anything. आप में से कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं त्यागा है। मैंने इतना त्यागा। There are some people who have given up everything. ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिन्होंने सब कुछ दे दिया है for the Lord. प्रभु के लिए। Your reward will be great. I prophesy. आपका प्रतिफल, आपका इनाम बड़ा होगा। Your reward will be great. आपका इनाम बड़ा होगा। Somebody say, I receive right now. कोई तो कहा मैं ग्रहण करता इस समय। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Refused. You know, there are many people, they say, no, pastor अभी से मैं नहीं आएगा। बोले क्यों? मैं बोला, कोई पकड़ा गया तेरे को रास्ते में? बोले नहीं, मेरे लोग ही मेरे को बोल रहे हैं नहीं आने का। What have you refused? क्या चीज को आपने ठुकराया है? What have you refused? क्या चीज को आपने ठुकराया है? I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। They're so scared. वे बहुत घबराते हैं। Do your relatives feed you? क्या आपके रिश्तेदार आपको खिलाते हैं? Please don't come then. तो मत आना। ये ले भाई, 2 चपाती खा ले मेरे तरफ से। नहीं सर, आप खुद की कमाते हो, खुद के घर में रहते हो, खुद की गाड़ी चलाते हो, खुद का पेट्रोल डालते हो, तो यीशु की सुन। अगर तुमको खाना खिला रहे, कपड़े पहना रहे, गाड़ी पहना रहे, निला रहे, धुला रहे, तो उनकी सुन। लेकिन खुदा ने आपको ऑलरेडी ब्लेस किया है, तो यीशु के लिए कम से कम तो खड़े रहे। He refused. Everyone say he refused. उसे ठुकरा दिया। Look at somebody, say he refused. जिसको देखकर उसे ठुकराया। To be called the son of Pharaoh's daughter. Give me verse 25. He closed for today. बेटी का बेटा कहलाने से। Choosing. Everyone say choice. सब लोग चुनाव। God will not choose it. You will have to choose it. देखिए परमेश्वर चुनाव नहीं करेगा, आपको चुनाव करना है। नहीं ब्रदर, सब लोग स्मोक करते हैं ना कॉलेज में, इसलिए मैं भी जाता हूं। सर क्या करूं यार? You choose it. आप चुनाव करें। नहीं, सब लोग मीटिंग के कॉलेज के बाद हम लोग सैटरडे को पीने को जाते हैं, वो बाहर हमारे कॉलेज के बाहर है। कॉलेज के बाहर हो या अंदर हो, चुनाव तेरा है। नहीं वो दोस्त जाएंगे, जाने दे। Choose it. चुनाव करें। Choose it. Choosing rather to suffer. Will I suffer because of this choice? Yes. क्या इस चुनाव की वजह से मुझे दुख तकलीफ झेलनी पड़ेगी? I don't want to hide. There will be suffering, but God is watching you. ऐसा दुख भोगना होगा, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपको देख रहा होगा। Your choices will not be easy. आपका चुनाव आसान नहीं होगा। How many of you say amen to that? It will not be easy. ये आसान नहीं I want to होगा। tell the young people. नौजवानों से कहना चाहता You हूं, get married to any Tom, Dick and Harry. आप अपनी शादी किसी से भी कर सकते हैं। Choose. चुनाव करें। You have to choose. आपको चुनाव करना Is है। he in the Lord? अब देखें क्या प्रभु में है वो? नहीं मेरा प्रेम, don't be like a मीना कुमारी। मेरा प्रेम उसे खींच लेके आएगा। उसका प्रेम नहीं आएगा, तू ही जाएगी डब्बे में। ऐसा सब मीना कुमारी वाले डायलॉग अच्छे लगते हैं फिल्मों में, असलियत में कुछ नहीं फायदा है। कितने लोग सुन रहे हैं? फिर तू उधर जाएगी, वो उधर जाएगा, और बच्चे बोलेंगे हम लोग जाना वहां जाते हैं जहां हमको पसंद है। This is the state of many families today. बहुत सारे परिवारों की यही हालत है। How many understand right ये now? तो समझ इस वक्त। तू तेरा कर, मैं मेरा करता हूं, और बच्चे बोलते हैं हम लोग अपना करेंगे। और बाद में जब वो बड़े होते हैं, पास्टर के पास मैसेज आता है, बोले हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करो। पूरी जिंदगी जो तुमने चलाया अपनी राज चलाया, अभी यीशु की राज चाहते हो? There has to be a choice. ऐसा चुनाव है। Look at somebody and say there has to be a choice. किसी को देखकर के चुनाव होना Look चाहिए। at somebody and say there has to be a choice. किसी को देखकर के ऐसा चुनाव होना चाहिए। Yes, there will be some suffering, but yes, I'm telling you, you know what happened? Moses was called a man of God. आप जानते फिर क्या हुआ? मूसा कहलाया परमेश्वर का जन। Go to Israel today. आज इस्राएल में जाएं। I'm telling you, कह रहे हैं आपसे। after God it is Moses. परमेश्वर के बाद मूसा का ही नाम सबसे Hello, मशहूर hello, है। hello, hello. I'm telling you, कह रहे the हैं आप। Jews, they have such a respect for prophet Moses. और यहूदी लोग भविष्यवक्ता मूसा को बहुत ही ज्यादा सम्मान देते हैं। This man made a choice. इस व्यक्ति ने चुनाव He किया था। said, I have no future with this Pharaoh's daughter. उसने कहा कि फिरौन की बेटी के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। Today I choose to live for God. आज मैं चुनाव करता हूं परमेश्वर के लिए जीने का। And that day और उस दिन was a turning point in Moses' life. मूसा की जिंदगी में निर्णायक मोड़ आया। Today, आज what has to go from your life? क्या चीज है जो आपकी जिंदगी से जानी Today, चाहिए? make an audit. Write it down. आज ऐसा आकलन लगाएं। Your personal life, आपका व्यक्तिगत जीवन, your financial life, आपका पैसों का क्षेत्र,
Ask yourself, अपने आप से sit पूछो। down and check what are the things which will bless me in the future. Work on those things. क्या वो चीजें जो मुझे भविष्य में आशीष पहुंचाएगी, तो उन चीजों पे काम करें, Work on those things. उन चीजों पे काम करें, Invest in those उन things. चीजों में निवेश करें, Give time to those things. उन चीजों में समय लगाएं, And what is not right, और जो चीज सही नहीं है, just say this has to go. और बस कहना कि बस इसे निकलना है। And if you do that, और अगर आप ये I करेंगे, give you 6 months. आपको 6 महीने देते You हैं, will come back. आप वापस आएंगे, Not with a testimony. गवाही के साथ ही नहीं। Some of you will have so much to give, so much to give, so much to be blessed. Lift your hands and say, I receive this आप word में से कुछ today. लोगों के पास बहुत कुछ देने के लिए, बहुत कुछ आशीष देने के लिए होगा। I receive this word today. अपने हाथ उठाकर मैं सोचे को ग्रहण करता May the हूँ। Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे, May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Could be a habit. ये कोई आदत हो सकती है। आदत के पीछे हम लोग बहुत पैसा उड़ाते हैं, बहुत पैसा उड़ाते हैं. Today, आज may God speak to you परमेश्वर आपसे बात करे, in Jesus' name. यीशु के नाम में। And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा, Amen. Give Jesus a shout of praise and say चलिए, hallelujah. यीशु ताली को बेचना का हालेलुया।